ठीक है. So GST Limited has furnished the following information from the financial books, that is trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018. Now first one is what? Opening stock finished goods. Opening stock of finished goods, that is 10,000 units. And opening stock, you all know in cost sheet where it goes after cost of production. Okay. Raw material, everyone knows. Direct material, direct wages, factory expense, factory overheads, that is work overheads, office and admin expense, office and admin overheads, selling and distribution expense, selling and distribution overheads. These all the items you all know, my dear students. Now, goodwill written off as well as loss on sale of investment. These two items are what? These two items are financial item. These two items are financial nature items. So these items are to be ignored while preparing cost sheet. So ये दोनों आपका ignore हो जाएगा. Okay, clear? Now, see here, sales final item. Cost sheet mein last one is for sales, that you all know. Okay. Now the next one, closing stock. Closing stock भी पता है बेटा. Closing stock क्या होगा? Closing stock cost of production के बाद ही आने वाला है. और closing stock in cost books will be valued at cost of production per unit. ये भी सबको पता है. You all know. Now, commission received and bad debts recovered. ये दोनों आइटम. See, commission received and bad debts recovered. Beta, these two items are what? These two items are financial nature items. What? These two items are what, beta? Financial nature items. So these two items are to be ignored while preparing cost sheet. ठीक है. So ये दोनों आइटम भी इग्नोर हो जाएगा. अब जो इग्नोर्ड आइटम है उसका तो रिकंसिलेशन बाय डिफॉल्ट होना है. देयर इज नो डाउट. ओके, चलो नेट लॉस. अब इधर लॉस हुआ है, लॉस नेट लॉस है. ठीक है, फाइनेंशियल बुक में लॉस हुआ है. ओके, नो वरी. ठीक है, तो वो तो अपना फाइनल पॉइंट जब हम रिकंसिलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर फाइनेंशियल बुक का नेट लॉस होना चाहिए. ठीक है, 144. और वैसे भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा यहाँ सबको पता है. स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट? Starting point will be cost sheet, means costing profit. Why? Because we are preparing costing book. We are preparing cost sheet. That is why our starting point will be costing profit या जो भी होगा. Costing profit हो, costing loss हो, कुछ भी हो. ठीक है, वही अपना starting point रहेगा. मतलब cost book अपना starting point होगा. Okay. Now, चलो adjustment. Let's see the adjustment step by step. The following information is revealed from the cost records for the year ended 31st March 2018. Yeah. ठीक है, चलो first one is what? Raw material consumption. Raw material consumption is ₹40 per unit of production. अब बेटा रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसका अमाउंट आपका कॉस्ट शीट में चेंज हो जाएगा. क्या बोल रहा है? 40 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो यूनिट प्रोड्यूस निकालना है. यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं सबको पता है, सबको फॉर्मूला पता है. क्या है फॉर्मूला? क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 20 प्लस यूनिट सोल्ड कितना है? 90. 1,90,000 कितना हो गया? फटाफट बताओ ऐसे ओरली. 1,90,000 प्लस 20 कितना हो गया? 2,10,000. बराबर है. फिर माइनस 10,000. अब 10,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 2 lakhs. यस, सो योर यूनिट प्रोड्यूस इज व्हाट? 2 lakhs. तो यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना है. तो 0,0,0 ज्यादा बढ़ जाएंगे, ज्यादा जीरो आ जाएंगे. बराबर है कि नहीं? अब देखो इधर देखो. हाँ, सब लोग इधर दिख रहा है. आंसर में ये दिख रहा है. कैन यू सी इट? 30. बराबर है, मतलब हमको 30 हटा देना. इधर दिख रहा है 30 कॉमन हटा दो इधर. मतलब अभी समझो 2 लाख रहेगा ना, तो हम लोग हर जगह 30 साइड में कर देते हैं. 30 नहीं लेंगे. सिंपल. ठीक है, तो अपना 0,0,0 लगाने का काम बच जाएगा यार. ठीक है, आज वाइज
ये सम को वैसे ही करेंगे जैसा इधर दिया है। अभी 1 लाख अमाउंट आएगा तो 30 हटा देना, 10 लाख आएगा तो 30 हटा देना। जैसे इधर देखो, इधर कितना अमाउंट था, ये 10 lakhs है, तो 30 हटाया तो कितना बन गया 1000, और ऊपर लिखा है ना 30 कॉमन, याद रखो, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व करने की थोड़ा आदत डालने का, 0 बच जाएगा ना तुम्हारा यार, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ये सब वैसे ही सॉल्व करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं, जिसको 0 लगाना है वो लगाते हैं, कोई कोई इशू नहीं, जिसको करना है वो कर सकता है। तीनों 0, जो भी आंसर आएगा 3 0 लगा, और क्या, ठीक है। तो ये सब हम जैसा दिया है 30 अवॉइड करने वाला, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। चलो आगे क्या अपना डायरेक्ट रॉ मटेरियल हो गया बेटा, रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस। तो अपना यूनिट प्रोड्यूस कितना आ जाएगा इधर, 190 प्लस 20 प्लस 10, मतलब 2 lakhs आ गया। कितना आ गया यूनिट प्रोड्यूस, 2 लाख। अब क्या कर रहा है, 30 हटा देना, तो 30 हटा देने का, 2 लाख में से 30 हटा दिया तो कितना आ गया 200। 30 हमने कॉमन ले लिया तो 200 के हिसाब से, वो बताऊंगा मैं जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, कैसा कॉमन लेना। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस आर 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब ये जो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस वो क्या होगा बेटा, 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जो भी डायरेक्ट मटेरियल आएगा उसका 70% हो जाएगा। कितना, 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर है, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये कितना होगा, recovered at 50% of direct material. Whatever amount is for direct material, उसका 50% ले लो, that's it, कोई इशू नहीं। फिर admin overheads are taken at the rate of 20% of work cost. अब admin overheads कितना लेना है अपने को, 20% of work cost। मतलब बेटा जो भी वर्क कॉस्ट आएगा उसका 20% ले लो, वो आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड हो जाएगा, कोई बात नहीं, यस इट्स नॉर्मल। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट द रेट 15 per unit. Okay man, okay, no problem, right? So selling and distribution overheads are recovered at the rate of 15 per unit. चलो, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये जो भी रहेगा उसको कॉस्ट शीट में क्या लेना अपने को, आर रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट। बेटा 15 पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स किसके ऊपर आएगा, नॉर्मल सी बात है यूनिट सोल्ड के ऊपर, तो ये किसके ऊपर रहेगा आपका, 15 पर यूनिट विल बी ऑन यूनिट सोल्ड। कॉमन ना बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब दैट विल बी डिपेंड ऑन यूनिट सोल्ड, सेल्स के ऊपर होगा। आफ्टर दैट सिक्स्थ वन, opening stock of finished goods. What, opening stock of finished goods is valued at 101.80. अब finished goods का opening stock of finished goods will be valued at 101.80. इधर भी अमाउंट चेंज हो जाएगा, इसका भी अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितना भी फिनिश गुड्स का यूनिट्स है उसको वैल्यू किस पे करना है, इनटू 101.80. ओके, नो नीड टू वरी, वी विल डू इट, no need to worry about that. Then closing stock of finished goods is to be valued at cost of production. ये तो भाई common adjustment है. If this adjustment is not given, then also we have to do it. ये तो common है बेटा, this is the common adjustment by default. ये adjustment आपको करना ही है कोई भी समय, वो चाहे मैं बोलूं या ये जो पीछे गावस्कर सर दिख रहा है वो बोले, एक ही मतलब, by default, ठीक है, करना ही है आपको। Then selling price is recorded at ₹125 per unit. हाँ, अब देखो सेलिंग प्राइस याद रखना, इधर सेलिंग प्राइस में भी चेंजेस है। सेलिंग प्राइस इज रिकॉर्डेड एट 125 पर यूनिट, ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट शीट में आपका सेल्स भी चेंज होगा 125 पर यूनिट के हिसाब से, मतलब यूनिट सोल्ड के बेसिस पे ही आएगा। किसके बेसिस पे भाई, सेल्स है तो किसके ऊपर आता है, यूनिट सोल्ड के ऊपर ही आएगा ना, सेल्स होगा तो यूनिट सोल्ड के ऊपर, दैट्स इट।
ठीक है, तो 125 के हिसाब से कितना यूनिट बेचा आपने, 190, 190 इंटू 125 कर लेना, तो अमाउंट ये और कॉस्ट शीट का अमाउंट सेल्स का चेंज हो सकता है। ओ माय गॉड, इधर तो सेल्स भी चेंज हो गया, कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग, रिकंसाइल करेंगे। अगर अमाउंट में डिफरेंस आ गया तो वी हैव टू डू द रिकंसिलेशन, दैट्स इट, ये फंडा है। तो ये है अपना क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और भी चीजें सीखोगे आप, वो 000 ऐसे अवॉइड करते हैं वो भी सीखोगे, राइट है। तो चलो, ये अपना क्वेश्चन था। अब इसके बेसिस पे अपने को बनाने को क्या बोला है, कॉमन सी बात है, वही होगा, कॉस्ट शीट बनाना है। व्हाट वी हैव टू मेक, कॉस्ट शीट एज वेल एज, सी देखो इधर देखो, डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट एंड आल्सो फाइंड आउट, ओहो हो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, क्या बोल दिया इधर, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है आपको, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट भी दिखाना है। ओह माय गॉश, इसमें आपको पर यूनिट भी दिखाना पड़ेगा, पर यूनिट का कॉलम होता है ना, पर यूनिट का कॉलम जैसे हम लोग बनाते थे ना पहले, क्या, टोटल कॉस्ट फिर यूनिट्स पर यूनिट, तो पर यूनिट का कॉलम आपको बनाना है। यूनिट्स का कॉलम तो नॉर्मल है, वो बनाओगे तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो ऊपर भी कॉमनली आप लिख सकते हो, बट बना देने का क्या जाता है, फटाफट इतना स्पीड तो रहेगा ना यार, ठीक है। टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट्स एंड पर यूनिट प्रॉफिट, ठीक है, वो पर यूनिट का कॉलम बनाओगे तो प्रॉफिट तो निकलना ही है। और स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन एज यूजुअल जैसा बोला है वैसा ही बनाना है अपने को, ठीक है। चलो, अब बेटा ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, देख लिया, बराबर है। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है, और ये कॉस्ट शीट हम लोग, ये 000 दिख रहा है, उसको साइड में कॉमन लेके बनाएंगे, ऐसा भी कर लो, देख लो कैसा है, या जीरो लगाना है तो जीरो लगा के कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं, बट 000 साइड में कॉमनली लेके कैसे सॉल्व करना है वो देखो, अच्छी बात है, उतना टाइम बचेगा ना 000 का यार, ठीक है। चलो, तो नाउ एवरीवन सिट विथ योर कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द सम, राइट है, with the cost sheet, and for that I'll share the screen board, whiteboard। चलो एक एक करके सब लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। Now we will going to solve it, my dear and lovely students, get ready, get ready for the venture now। ये हो गया व्हाइट बोर्ड ऑप्शन, अरे हाँ यार, आ गया एंड हियर इट इज, चला मग आता आपण स्टार्ट करूया। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, द वेरी फर्स्ट, यू ऑल नो दैट व्हाट वी हैव टू डू, पहले इधर लिख देना सोल्यूशन, कंपनी नेम एट द टॉप, दैट इज GST लिमिटेड, this is what company name, company name is what, GST limited, okay। Now what we have to make, we have to make first cost sheet, what we have to make beta, cost sheet, so write down here, cost sheet, what for the year ended, कभी कह दिया है बेटा, क्वेश्चन में देखना सब लोग, अभी अपना ग्रुप पे एवरीवन, ग्रुप पे क्वेश्चन निकाल लो और ध्यान दो, cost sheet, what we have to make, cost sheet for the year ended, cost sheet for the year ended 31st March 18, cost sheet for the year ended what beta, 31st March 2018, okay। चलो, so this is what for step
everyone knows. First one is for step, then for what? Element of cost. ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. बेटा अभी इधर क्या हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इन रुपीस, और इधर दिखा दो ऐसे कितना जीरो अपने को 30 के हिसाब से कंसिडर करना है, मतलब 30 अवॉइड करना है, दैट्स इट. ठीक है, टोटल कॉस्ट, फिर यूनिट्स, सब में हम लोग कॉमन करेंगे 30 अवॉइड. राइट, और फाइनली पर यूनिट. पर यूनिट पे थोड़ी करना 30, पर यूनिट तो डायरेक्ट डिवाइड करके आएगा, इधर मत करना, पर यूनिट. ठीक है, एक यूनिट का प्राइस. राइट, इसको लिख देता हूं मैं, कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू. ओके बेटा, चलो आ जाओ फटाफट बनाओ. फिर सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा अपना, वेरी फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल. सबको पता ही है, फटाफट सॉल्व कर लो. कॉस्ट में तो माहिर हो चुके हो आप. डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन सामने रखना. डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम. ठीक है, देखो जरा, रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल आपको दिया भी है. और क्या बोल रहा है बेटा उधर, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट. जरा क्वेश्चन में देखो सब लोग, एवरीवन क्वेश्चन देखो, ग्रुप पे भेजा है, ओपन करो. सी एब्सेंट ऑन द ग्रुप, सो ओपन इट एवरीवन. देखो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज 40 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो आपको पता है कि 40 बोला है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 40 ये तो पर यूनिट है, बट प्रोडक्शन है कितना. राइट है, प्रोडक्शन के लिए आपको वर्किंग नोट करना है, तो आ जाओ वर्किंग नोट कर लो. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. बेटा फॉर्मूला सबको पता ही है, यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, आ जाओ. क्लोजिंग स्टॉक, इधर यूनिट्स, और सेम क्या करना है अपने को, 30 अवॉइड कर देना बस. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट योर, बराबर है, यूनिट प्रोड्यूस. समझा. चलो बेटा अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया आपने को, क्वेश्चन में जरा ध्यान देना. क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको कितना, 20,000. ठीक है, 20,000 है, तो 30 हटा दो, कितना हो जाएगा 20. 30 अपन ने कॉमन ले लिया ना बेटा हम लोगों ने, तो 20,000 है, तो 30 हटाओ, कितना हुआ 20. यूनिट सोल्ड कितना है 1,90,000. 1,90,000 में से 30 हटा दो, तो कितना हो गया 190. ठीक है, और मैंने क्या बोला, जिसको जीरो लगाना है तो फिर वो लगा भी सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, सब में जीरो 3-3 लगाने का, फिर तो ये लिखने का ही नहीं, बट एक सम ऐसा भी करके रखो, समझे कि नहीं. चलो 190, तो कितना हो गया ये 210, दोनों को प्लस किया तो 210 हो गया. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा आपका 10,000. 10,000 मतलब 30 हटाया तो कितना हो गया 10. ठीक है, तो माइनस किया तो कितना आ गया 200 यूनिट्स. तो आ गया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस आ गया. अब अगर आप रीडिंग करोगे तो नॉर्मल है, देखो 30 कॉमन है, इसका मतलब ये 20,000, ये 1,90,000, 2,10,000, ये 10,000, ये 200, और ये 30 मतलब 2 लाख. दैट्स इट. ठीक है, तो ये भी ट्रिक याद रखने का, सम सॉल्व करने की, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, करना है तो कर सकते हो या फिर जीरो लगाते बेटा, और क्या, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, हो गया. चलो वर्किंग नोट डन, आ जाओ.
तो बेटा यूनिट प्रोड्यूस आ गया आपको कितना 40,000. इधर दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 1. अब दिस यूनिट प्रोड्यूस विल कंटिन्यू टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपका कंटिन्यू जाने वाला है, सबको पता है. ठीक है, चलो 40 इंटू 40,000 कितना आ गया ये यूनिट्स. अच्छा यहाँ यूनिट्स हमने ये लिया ना, सॉरी यूनिट्स प्रोड्यूस है 200 है. 200 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपका कितना है इधर 200. ये देखो 200 आया ना, ठीक है. सो 200 ले लिया. अब देखो बेटा 200 इंटू 40 कितना आ रहा है 8,000. 8,000. यस करेक्ट करेक्ट 8,000 राइट. ठीक है, चलो अब ये तो वैसे भी 30 कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आंसर 8,000. ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल के बाद सेकेंड वन आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस बेटा डायरेक्ट वेजेस के लिए क्या बोल रहा है 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. क्या बोल रहा है 70% ऑफ व्हाट डायरेक्ट मटेरियल है कि नहीं. तो चलो निकालो जरा, देखो क्वेश्चन में देखो हम लोग कुछ कर नहीं रहे, डायरेक्टली सब क्वेश्चन के हिसाब से 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है उसका 70% निकाल लो. तो डायरेक्ट वेजेस क्या बोल रहा है 5,600. यस 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो 40 का 70% निकालोगे कितना आएगा 28. सबको पता है. और ये यूनिट्स तो पता ही है 200 है, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 5,600. ठीक है बराबर. चलो ये भी हो गया. डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं अपने पास, तो एड अप कर लो. वी विल गेट आर प्राइम कॉस्ट. We will get what our prime cost 13,600. शाबाश बेटा प्राइम कॉस्ट. सो ये आ गया 13. दिस विल बी 13,600 एंड दिस इज व्हाट 200 और डिवाइड कर लो. सो कितना आ रहा है 68. यस. नाउ बेटा आफ्टर प्राइम कॉस्ट व्हाट विल कम you all know factory overheads, that is work overheads. Work overheads. After prime cost there will be what work overheads. Everyone knows. Now work overheads में आपके पास क्या है बेटा factory expense है. क्या बेटा factory expense. So show it here factory expenses. बेटा नाउ दिस फैक्ट्री एक्सपेंस इज हाउ मच. तो फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए क्या दिया देखो 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बोला है ना, राइट है. 50% ऑफ व्हाट डायरेक्ट मटेरियल है कि नहीं, वही दिया ना कि और कुछ दिया बराबर. सो 50% ऑफ डायरेक्ट 4,000 sir. यस करेक्ट. तो देखो ये सब वेरिएबल वाला ना, वेरिएबल पे पर यूनिट ही लेना पर यूनिट. तो 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मतलब ये देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 40 है ना, तो 50% कितना हो गया 20. ठीक है, फिर अपना यूनिट से 200 तो ये हो गया 4,000. हाँ वो अलग बात है, इधर ये भी लोगे तो वही आएगा आंसर, बट नॉर्मली वेरिएबल ओवरहेड्स तो पर यूनिट के हिसाब से कंसिडर करने का. ठीक है चलो. तो 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना है 40 रुपीज है. 40 का 50% हो गया 20. यूनिट्स पता ही है, यूनिट प्रोड्यूस 200. ये कब तक जाएगा टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक. फिर कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया तो 4,000 आ गया. चलो नेक्स्ट 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हो गया. अब बेटा फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करने के बाद वी विल गेट व्हाट आर 17,600. 17,600. वेरी गुड. This will be our work cost
17,600 will be our work cost. Unit produce पता ही है 200 है, divide it, what will get? 88. 88. Yes. 88. Now after that, after work cost, what will come? After work cost, what will come? Are office and admin overheads. आ जाओ. So let's do it. 6th one is office and admin overheads. Office and admin overheads. चलो बेटा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के लिए क्या बोल रहा है अपने को? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट. ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स क्या बोल रहा है आपको? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट. अब वर्क कॉस्ट का 20%, ठीक है, तो वर्क कॉस्ट कितना है? 3,526. यस, सो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट. ठीक है, अब ऑफिस एंड एडमिन भी बराबर है, वर्क कॉस्ट का 20% निकालो, कितना आया था? 3,520. 3,520. 3520. 3520, that is 20% of work cost. ठीक है, 200 यूनिट्स है, डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 17.6. 17.6. ये तो पता ही है आपको. या फिर देखो, ऑफिस 20% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला है, तो वर्क कॉस्ट अपना कितना था? 88 था, बराबर है. तो अब आप करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो 88 का कितना परसेंट है? 20%. 88 है इंटू 20%, 17.6 आ गया. ठीक है, मल्टीप्लाई करो 200 से, यही आंसर आएगा सेम. ठीक है, चलो वर्क कॉस्ट का अब इसके ऊपर लो या इसके ऊपर लो, मतलब तो वही है, राइट है. नॉर्मली क्या, जो भी वेरिएबल होते हैं वो सब हम पर यूनिट के हिसाब से ही कंसिडर करते हैं, बट इधर कुछ बोला नहीं है, तो आंसर इधर लो या अमाउंट के ऊपर लो, आंसर वही मिलने वाला आपको. ठीक है, बट याद रखने का, वेरिएबल कोई भी आइटम रहेगा तो पर यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेशन करने का, अगर कुछ नहीं दिया तो. चलो अभी नेक्स्ट आपको 7th आइटम, ऑफिस एंड एडमिन प्लस किया तो क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Sir, 21,120. वेरी गुड बेटा, 21,120, 200 यूनिट्स. सो डिवाइड किया तो कितना आ गया? 105.6. 105.6. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. चलो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करना है बेटा अपने को? इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी. अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी के लिए देखो, इधर बोला ही है, इधर रेट भी दिया है. कितना रेट हो जाएगा? 101.80. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन में दिया है आपको 101.80. और ओपनिंग स्टॉक पता है कितना यूनिट है? ये देखो इधर हमने किया ना, 10 यूनिट्स है. 10 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है, 10 यूनिट्स. मल्टीप्लाई कर लो 101.8 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 1018. सो दिस इज व्हाट ओपनिंग स्टॉक, राइट है. अब नीचे माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी. या फिर क्या कर सकते हो आप? पहले प्लस कर लो, फिर माइनस करो, वैसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट, आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किसके ऊपर वैल्यू होगा बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के ऊपर. अब देखो इधर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है अपने को. क्यों? क्योंकि हमने पर यूनिट बनाया ना बेटा, तो काय को फॉर्मूला लगाने का? पर यूनिट बनाया ना. देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना आया, ये दिख रहा है आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है? 105.60. ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक इसी पे वैल्यू होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे. तो आ जाओ 105 कितना है? 60. अगर यही पर यूनिट नहीं बनाया होता तो हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ता, बट इधर तो है ही ना अपना पर यूनिट, तो मालूम पड़ गया ना आपको. तो 105.60 ये सेम आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. और कितना है क्लोजिंग स्टॉक? देखो इधर
क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, सो 20 मल्टीप्लाई करो 105.60 इंटू 20 कितना आ रहा है सर 2112. 2112. वेरी गुड. अब ये माइनस करना है अपने, ये अपने को डिडक्ट करना है. सो डिडक्ट करने के बाद अपने को मिलेगा क्या, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अच्छा, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फर्स्ट. सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो पहले. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ. ये अपना स्टेप हो गया, एलिमेंट. चलो फिर अपना स्टेप नंबर 8 हो गया, 9 आ जाए. ये इसको 9 दे देते हैं हम लोग. अब ये स्टेप नंबर 10. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. चलो टोटल बता दो मेरे को फटाफट, कितना आ रहा है टोटल. यस सर 20026. देखो कैसा टोटल करना पता है ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो कितना आया 20026. वेरी गुड बेटा, 20026. और यूनिट सोल्ड कितना आ जाए देखा, 190 डिवाइड कर लो तो अपने को आ गया 105.40. वेरी गुड. फिर अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आता है सबको पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना बोल रहा है 15 पर यूनिट. ये भी डायरेक्टली दिया देखो 15 बोला है ना बेटा क्वेश्चन में, 15 पर यूनिट. और यूनिट सोल्ड कितना है 190, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया. सर एक बार क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिखाओ ना. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के ऊपर वैल्यू होगा, आ गया. और आपका यूनिट्स पता ही है, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बनाया उसमें 20 यूनिट्स है, क्वेश्चन में भी दिया है, मल्टीप्लाई कर लो तो 2112 आ गया. ठीक है, अटेंडेंस हो गया सबका, कोई बाकी नहीं है ना. ओके चलो. ओके सर, थैंक यू. ओके अभी ये प्लस कर लो, फिर तो हो जाएगा ना अभी सबका. अब ये कर लो, इसको कंप्लीट कर लेना. 12th वन क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स. चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब ये प्लस किया तो कितना आ गया 22876 बराबर है. 190 आपका यूनिट सोल्ड है, डिवाइड किया तो 120.40. फिर लास्ट में अपना सेल्स, और बीच में क्या रहेगा अपना प्रॉफिट. सॉरी ये आपका 14 नंबर है, ये आपका 13 नंबर, 13 नंबर प्रॉफिट. अब सेल्स के लिए खाली देखना, सेल्स के लिए अपने को क्वेश्चन में जो दिया उसके हिसाब से कर लो. अभी सब लोग सेल्स कितना बोल रहा है 125 पर यूनिट बोला है, 125 और यूनिट है 190, कर लो 23,750. बस अब तो हो जाएगा ना सबका. बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट. अब इतना तो निकाल लोगे, 4.60 हो गया और इधर कितना आ गया 874. दैट्स इट, हो गया खत्म.